Good morning, everyone. Today I'm here with your new chapter, chapter number 16. The name of the chapter is Water or Lifeline. This is your chapter number 16. Water. Water is our lifeline, right? So, water, as you all know, water is very important for our life, right? And our earth is also made up of water. There are 70% of water on our earth surface, in which 2 to 3% of water is fresh water, which we have to use. Okay, as earth is made up of water, our body is also 16, about around 60% of body is made up of water. So water is very essential for our life. It's very important, right? It's our lifeline. So in this chapter, what we are going to learn about, we learn about the purification, how we purify water. Okay, we learn about waterborne disease. What we are going to learn? Waterborne disease means water से होने वाली disease कौन कौन सी है? If we drink dirty water, so which type of disease affect us? Okay. Next, interdependency of living beings in term of food and water. Okay, living beings हैं जो आपस में एक दूसरे से कैसे interconnected हैं. Okay, and water management. So these are the 4 topics that we have to cover in this class. Okay, so are you ready? So here is the picture. There are 3 pictures. These are the posters: save water, save life, water is life, save energy, drop of water. So what is the question? Question is, what common message do these posters convey? ये जो posters है ये हमें क्या message convey कर रहे हैं? So these posters convey us that water is very important for us and we have to save water. और हमें क्या करना है? Water को save करना है. Because on earth only 2 to 3% of water is fresh water which we use, right? Okay, so we have to discuss this chapter. We can't live without water. हम water के बिना नहीं रह सकते. We can't live without water. Can't live. Okay, it is used. We use water for doing many things. Just like we need water for drinking, we need water for cooking, we need water for washing, we need water for cleaning, we need water for watering plants, we need water for putting out from fire. So we have lots of things to do with water. बहुत सारे things है जो हमें water से करने होते हैं. ये हमारी daily life में हमें water ये required होता है because we have to do lots of things with water, right? So it is used for drinking, bathing, washing clothes and utensils. We should use clean and pure water. हमें कैसा water use करना है? We have to use clean and pure water. हमें pure water को use करना है. If you use dirty water, so we have fall sick and we have lots of disease, right? So we do not use dirty water. We have to use clean and pure water. हमेशा हमें clean water use करना है, pure water use करना है, right? So let's come to our first topic. Okay, what is this? This is water purification. How we purify water. हम पानी को कैसे साफ करेंगे? How we purify. आपने देखा होगा आपके हाउसेज में आजकल इन दिस टाइम नाउअडेज वी यूज वाटर फिल्टर्स इन आवर होम्स, जस्ट व्हाट वी कॉल इट आरओ सिस्टम, है ना? तो हम सबके हाउसेज में होता है बाय विच वी प्योरीफाई वाटर, राइट? तो हम इसने अपने वाटर को प्योरीफाई करके ही ड्रिंक करते हैं. तो लॉट्स ऑफ हाउसेज वी सी देयर आर लॉट वाटर फिल्टर्स, राइट? So some water are electric
and some water are runs on battery. तो कुछ वाटर प्योरीफायर्स ऐसे होते हैं जो बैटरी से चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं. So let's take a look on water purification. So there are lots of methods for purify water. तो ये तो आरओ सिस्टम तो अभी आए हैं, इन मॉडर्न डेज का है, बट उससे पहले कैसे वाटर को हम क्लीन करते हैं. देखिए, एक तो वाटर क्लीन करने का मेथड होता है बॉइलिंग, ओके, एंड क्ले वेसल्स का हम यूज करते थे फॉर फिल्टरिंग वाटर and chlorination. These are the methods by which we purify water. So let's take a look on these methods, right? Okay, so water purifier, sorry, we purify water. Why we purify water? We purify water to remove impurities. वाटर के अंदर जो impurities होती है उसको remove करने के लिए, ठीक है, जो डर्टीनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए और जर्म्स को किल करने के लिए वी हैव टू प्योरीफाई वाटर, राइट? सो द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? हमें वाटर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है. तो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर? वाटर हमें कहाँ से मिलता है? तो दे आर द सोर्सेज जस्ट लाइक रिवर, लेक, रेन एंड lagoons और आपके नियर बाय में पॉन्ड्स होते हैं. दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. ये पानी के सोर्सेज है. वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, दीज आर द सोर्सेज. ये सोर्सेज है जहाँ से वी गेट वाटर. हमें क्या मिलता है वहां से? वाटर, राइट? सो द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, दे आर फुल ऑफ जर्म्स. तो वाटर कैसा होता है? उनका जर्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारे दे have lots of impurities and germs in it. So it is not safe for drinking. तो जो भी water आप इन sources से लेते हैं, they are not fit for drinking. ये आपकी drinking के लिए fit नहीं होता. If you drink directly, then without purifying, you get fall sick. So this is there are some methods that we use for to purify all these water from that we get from the different sources. So this water is purified and filtered to make it fit for different uses. तो अब आप इस water को जो आपने different sources से लिया है, we have to purify it, we have to filter it for doing our different purpose. Okay, so first method is boiling. What is your first method? Your first method is boiling water. Why we boil water? Because when we boil water, so it kills the germs. Okay, so boiling water kills the germs. So we boil water. Okay, so there are different methods. First is your boiling. Boiling water has kills harmful germs that may be present in the water. तो वाटर के अंदर जो भी हार्मफुल जर्म्स है, इनको किल करने के लिए वी हैव टू बॉइल वाटर. दिस मेक वाटर सेफ टू ड्रिंक. अगर आपने वाटर को बॉइल किया है तो वो आपके ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल फिट है. वेरी सेफ. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड. इट इज एन ओल्डन मेथड. दिस इज क्ले वेसल फिल्टरेशन. व्हाट इज दिस मेथड? क्ले वेसल फिल्टरेशन. वेसल्स मीन्स वो कंटेनर विच इज मेड अप ऑफ क्लेस. ऐसे वेसल्स, ऐसे कंटेनर्स जो किसके बने हुए हैं? मड, राइट? क्ले, इनके बने हुए ऐसे वेसल्स होते हैं जिनको हम मटके भी बोलते हैं, राइट? तो इसकी हेल्प से वी हैव टू फिल्टर आवर वाटर. दिस इज वेरी ओल्डन मेथड. व्हाट वी हैव टू डू? Listen, long ago people used clay pot to purify muddy water. तो जब एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम पे लोग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस प्योरीफाई मडी वाटर का यूज करते थे. जो भी मडी वाटर होता था उसको प्योरीफाई करने के लिए क्ले पॉट्स का यूज करते थे. ओके, इसमें क्या किया जाता है? दे हैव द देयर आर द पॉट्स. ओके, हर कोई एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स होती थी. जो सबसे बॉटम वाला क्ले पॉट था उस पर एक होल करके वहां पर आप टैप लगा सकते थे, राइट? तो टाइनी होल्स आर मेड एट द बॉटम ऑफ द क्ले जार. जो सबसे नीचे वाला जार होता था, क्ले जार, जो क्ले वेसल है,
उसमें हम क्या लगाते थे, टैप लगाते थे, राइट। एंड इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाते थे। लेयर्स किसकी होती थी, सैंड, लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, ग्रेवल मीन्स स्टोन्स। तो इनके अंदर आप क्या फिट करते थे, इनके अंदर हम लोग डालते थे, लेयर्स डालते थे, अलग अलग होती थी, जैसे कि कुछ स्टोन्स की लेयर्स हो गई है, राइट। कुछ बिग स्टोन्स होते थे, फिर कुछ स्मॉल स्टोन्स हो गए हैं, और सैंड हो गया है, चारकोल हो गया है, मीन्स आपका जो कोल होता है, कोयला, ठीक है, वो हो गया है। तो वो इनके अंदर फिल किया जाता था। जब हम इनके अंदर डर्टी वाटर को पोर करते थे, जिसमें से डर्टी वाटर जाए के अंदर से पोर होता था, तो इस इट्स टेक टाइम, और जो इम्प्योरिटीज थी वो यही स्टॉप हो जाती हैं, इन्हीं कुछ स्टोन्स के बीच में, कुछ सैंड के बीच में, यहाँ पर इम्प्योरिटी सारी रिमूव हो जाती है, और लास्ट में आते आते आपके पास बिल्कुल प्योर वाटर आ जाता है। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड ऑफ क्ले वेसल फिल्टरेशन। लेट्स बी रीड इट। Tiny holes are made at the bottom of the jar. Inside the jar, layer of sand and gravels are added. तो इन jars के अंदर हम लोग किसकी layers डालते हैं, sand and gravels, means stones की, कुछ big stones and some are small stones. When dirty water is poured into the jar, it goes through the sand and gravels. जो भी आप डर्टी वाटर इसमें से पोर करते हो, जब आप इसमें से डालते हो, तो जो डर्टी वाटर है वो इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर में से फिल्टराइजेशन होकर के आपको बिल्कुल क्लीन वाटर लास्ट वाली वेसल से, you get the clean water from the last one. As it goes through these layers, the water becomes clean. तो जो भी डर्टी वाटर है, जब इन लेयर में से आपके पोर होता जा रहा है, वाटर आपका क्लीन होता जा रहा है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इट्स अ वेरी कॉमन मेथड, फिल्टरेशन थ्रू क्लोथ। आपने देखा होगा आपके हाउस में भी कंटेनर के ऊपर मम्मा कॉटन क्लॉथ लगा करके आपका जो वाटर है उसको क्लीन करती है। तो इट इज अ वेरी कॉमन मेथड इन ईच एंड एवरी हाउस। सो इन दिस प्रोसेस अ टाइनी क्लॉथ ऑफ कॉटन इज यूज्ड टू फिल्टर आउट द डर्ट। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी डर्ट होती है विच इज फिल्टर आउट, ओके, क्लोथ के ऊपर जितनी भी डर्ट है वो सारी क्लोथ के ऊपर आ जाती है। दिस इज द वेरी कॉमन मेथड फॉर प्योरीफाई वाटर, राइट। So here is the do you know, watch it. Let's talk about do you know. What is this? While making tea, जब आप टी बनाते हो, चाय बनाते हो, तो टी लीव्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर में छलनी, जो छलनी होती है उसमें जो भी टी लीव्स होती है वो सारी सेपरेट हो जाती है, एंड वी गेट टी इन अ कप। So this is also called filtration. What we called it? Filtration. Okay, now come to the another method. This is chlorination. Chlorination में क्या होता है? We have to add chlorine tablet into water that kills microorganisms present inside the water. जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लोरीन टैबलेट से किल हो जाते हैं. दिस इज द ऑल्सो अ मेथड for purify water. So we learn about the methods. First was boiling. Second was clay water filtration. Third is your chlorination, and fourth is filtration through cloth. So we learn about all these methods in our houses, and nowadays we use electric water purifiers which is used to filter water, and we get clean water from them. So just like मैंने आपको अभी रिसेंटली भी बताया था कि वाटर प्योरीफायर रन्स ऑन बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी टू. ओके, so purifying water is important. Purifying water is very important. Water को purify करना, filter करना बहुत important है, because it prevent disease, waterborne disease. It prevents waterborne disease. ये हमें किससे बचाता है? Waterborne disease से. So we have to purify water, and we also ensure that we have clean and safe drinking water. और हमें क्या इंश्योर होना है कि we have to drink clean and pure water, because it is very safe for us and it keeps us healthy.
Okay, so this is the methods and this is the thing why we purify water. Okay, so what we are learn right now, अभी हम क्या learn किया है, we have to learn about the water, why water is important for us, right? From what are the sources from which we get water, हमें water कहाँ से मिला, हमें water कहाँ से मिलता है, and what are the purification methods of water, water की purification methods क्या है, और साथ में भी हमने पढ़ा है why purification is important. Purification is important because it prevent us from waterborne disease. गंदे पानी से होने वाली जितनी भी डिजीज है उन सब से हमें बचाता है बिल्कुल clean water. So we have to purify water and it's very safe for drinking. Okay, now here is an experiment. Okay, तो एक sedimentation का एक experiment है. You also have to do it at your home. What is this? You have to take a 2 container. Okay, आपको 2 clean containers लेने हैं. So you have to take 2 clean glass containers. Okay, so pour clear water into it. आपको क्या करना है, एक 1 कंटेनर के अंदर आपको 2 कंटेनर लेना है, एक 1 कंटेनर के अंदर आपको बिल्कुल क्लीन वाटर को फिल कर देना है. ओके, नाउ टेक सम सैंड एंड मिक्स इन इट. उसके बाद में आपको क्या करना है, सैंड लेनी है और उसको उस वाटर के अंदर मिक्स कर लेना है. ओके, व्हाट डू यू सी, अब आप क्या देखोगे, यू सी वाटर बिकम्स डर्टी. आपको क्या दिखेगा कि जो वाटर है वो गंदा हो गया, वाटर बिकम डर्टी. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. अब आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा. व्हाई? टू द सैंड पार्टिकल सेटल एट द बॉटम. तो जितनी भी सैंड के पार्टिकल्स है ये नीचे बॉटम में बिल्कुल सेटल हो जाए. जितने भी पार्टिकल्स है सैंड के नीचे बॉटम में इनको सेटल डाउन करना है हमें. सो वी हैव टू वेट फॉर इट. आप क्या देखोगे कि थोड़ी सी देर में, इन अ फ्यू मिनट्स, these sands goes the bottom of the glass. ओके, तो जितनी भी सैंड है वो वाटर के बिल्कुल बॉटम पर आ जाएगी और क्लीन वाटर बिल्कुल आपके ऊपर आ जाएगा. ओके, सैंड के ऊपर बिल्कुल क्लीन वाटर आ जाएगा, सारी सैंड नीचे की साइड में सेटल डाउन हो जाएगी. सो दिस प्रोसेस, what we call this process is called sedimentation. What we call it? Sedimentation, in which water becomes clear. Okay, जो अपर लेयर होगी वो क्लीन वाटर की होगी और जो बॉटम पे होगा वो सैंड होगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. अब आपको क्या करना है, इन योर नेक्स्ट कंटेनर, जो नेक्स्ट ग्लास है, यू हैव टू पोर दिस वाटर. जो क्लीन वाटर है इसको धीरे धीरे से नेक्स्ट ग्लास में आपको उसको पोर कर देना है, उसको अलग कर देना है. ओके, और जो भी सेटल पार्टिकल्स हैं इनको इसी ग्लास में छोड़ देना है. वी हैव टू लीव दीज पार्टिकल्स इन दिस ग्लास. फर्स्ट ग्लास में ही आपको उसको छोड़ देना है और सेकेंड ग्लास में आपको ये जो क्लीन वाटर है उसको उसमें पोर कर देना है. सो व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड decantation. Okay, so we have to learn about these 2 processes. Means अगर वाटर आपका डर्टी है, you have to settle down it. आपको उसको कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन कर देना है. तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो वाटर के नीचे बॉटम में गैदर्ड हो जाएगी. ओके, तो दिस प्रोसेस, जब वाटर के सेटल डाउन होने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. ओके, और जो आपने आपका क्लीन वाटर को अदर कंटेनर में पोर किया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड decantation. Okay, so we have to learn about these are the 2 processes. Okay, so you have to do this experiment at your home. Now let's talk about waterborne disease. Waterborne disease means dirty water. When we drink dirty water, we get these type of disease. Okay, so these diseases are called waterborne disease, right? Okay, now drinking of impure or contaminated. Contaminate means dirty water. Impure or contaminated, dirty and full of germs. Contaminate का क्या मीनिंग है?
dirty water and water that full of germs. We call it impure or contaminated water. It causes disease. अगर आपने dirty water को drink कर लिया है, you get these types of disease. Okay, so this is called waterborne disease. Here are some waterborne disease. Let's talk about the first disease. What is the first disease? First is diarrhea. Diarrhea is a disease. It is also a waterborne disease. When we drink dirty water, अगर आपने गंदा water को drink कर लिया है, तो फिर आपको इस टाइप की डिजीज हो सकती है. एंड हाउ इट स्प्रेड, देखो आपको 3 टाइप्स में इसको समझना पड़ेगा कि कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है डायरिया. सिम्टम्स, अगर किसी को डायरिया हो गया तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं. एंड प्रिवेंशन, व्हाट आर द प्रिवेंशन, हम इससे कैसे बच सकते हैं. तो वी हैव टू टेक अ लुक ऑन दैट. फर्स्ट इज डायरिया. हाउ डायरिया स्प्रेड? इट इज स्प्रेड थ्रू पुअर सैनिटेशन. पुअर सैनिटेशन मीन्स अगर आपकी क्लीनिंगनेस नहीं, आपके सराउंडिंग्स में आपको सेल्फ क्लीन नहीं हो, तो आपको इस टाइप की डिजीज हो सकती है. ओके, तो पुअर सैनिटेशन से. एंड कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज, अगर कहीं आपने ऐसी जगह का वाटर ड्रिंक कर लिया है जो कंटामिनेटेड है, जो इम्प्योर है, फुल ऑफ जर्म्स है, डर्टी है, ऐसे वाटर को अगर आपने ड्रिंक कर लिया है, या आपका सैनिटेशन पुअर है, आपकी क्लीनिंगनेस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो आपको डायरिया हो सकता है. अगर आपको डायरिया हो जाता है तो व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या आते हैं? जस्ट फ्रीक्वेंट लूज एंड वाटरी स्टूल्स. आपको फ्रीक्वेंटली स्टूल आती है कंटिन्यूसली, और वो कैसी होती है? लूज होती है, वाटरी होती है. और आपको फीवर आता है और एब्डोमिनल पेन होता है, आपके स्टमक में पेन होता है. ओके, तो दीज आर द सिम्टम्स. आपको लूज मोशन हो जाएंगे, आपको फीवर आ जाएगा, आपके स्टमक में पेन होगा. तो ये आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं. ओके, अब इससे प्रिवेंशन क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग? तो वी हैव टू ड्रिंक ऑब्वियसली क्लीन एंड सेफ वाटर. आपको कैसे वाटर ड्रिंक करना है? क्लीन वाटर ड्रिंक करना है. यूजिंग इम्प्रूव सैनिटेशन, आपको अपने घर में साफ सफाई रखनी है, आपको सेल्फ क्लीनिंगनेस रखनी है. ये आपको मैनेज करना होगा, ये आपको करना ही चाहिए. यू हैव टू इम्प्रूव योर सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन. ठीक है, इनसे बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए. तो दीज आर द प्रिवेंशन फॉर डायरिया. नाउ नेक्स्ट डिजीज इज टाइफाइड. टाइफाइड फीवर. हाउ इट स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है? इट स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इम्प्योर वाटर. जो डर्टी वाटर है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है, उससे आपको टाइफाइड हो सकता है. इफ यू सफर फ्रॉम टाइफाइड, सो हाउ यू कैन नो इट? आपको कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द सिम्टम्स? यू हैव हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन एंड हेडेक. मीन्स आपको हेडेक होगा, स्टमक पेन होगा, वीकनेस होगी, हाई फीवर होगा. इस टाइप के सिम्टम्स जब आपको दिखाई देंगे, देन यू हैव टू टेस्ट. आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं. सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस? वी हैव टू ड्रिंक सेफ वाटर. आपको क्या करना है? वाटर जो है वो बिल्कुल क्लीन, हमेशा आपको हमेशा ये याद ही रखना है कि यू हैव टू ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर. आपको क्लीन और सेफ वाटर हमेशा ड्रिंक करना है. एंड ऑब्वियसली मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन. मीन्स साफ सफाई का आपको हमेशा ध्यान रखना है. ओके, हाइजीन मेंटेन करना है. नेक्स्ट है डिसेंट्री. This is also a disease that is spread from dirty water, contaminated water. Also spread through bacteria. ये भी बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होता है. और पैरासाइट्स that is present in contaminated water और फूड. जो भी पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो लिविंग बींग्स होते हैं जो अदर लिविंग बींग्स पे रहते हैं, राइट? तो इस टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं, जो किसी कंटामिनेटेड फूड या वाटर पे होते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं, इनसे आपको स्प्रेड होता है डिसेंट्री. डिसेंट्रीज में क्या क्या होता है? व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स दिस मीन्स सेवरल डायरिया विद ब्लड और म्यूकस. अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको डायरिया के साथ मीन्स आपके लूज वाटर स्टूल के साथ में स्टूल में ब्लड भी आता है.
तो ये एक सिम्टम है। एंड एब्डोमिनल पेन, साथ ही आपको स्टमक में भी आपको वो गुड़गुड़ जैसा पेन होता है एंड फीवर आता है। तो दीज आर द सिम्टम्स। अगर किसी को टाइफाइड है तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। सो व्हाट वी हैव टू we have to do to prevent this disease? The washing hands with soap and water. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको वाटर और सोप से हैंड वॉश करने हैं। यू कैन यूज वार्म वाटर ऑल्सो, ओके, बिफोर and after every meal. So this is a cleanliness habit also. We have to wash our hands before and after every meal. You have to make it habit. And obviously we have to drink clean and safe water. तो आपको जितनी भी डिजीज है, वाटर बॉर्ड डिजीज है, इनका जो प्रिकॉशन है, जो भी आपको प्रिवेंशन है, वो कैसे होगा? यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर। हमेशा आपको क्लीन वाटर, सैनिटेशन मेंटेन करना है, ओके, मीन साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। और यू हैव टू अवेयर फॉर योर सेल्फ क्लीनलीनेस टू। आप अपने खुद की सेल्फ क्लीननेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इन डिजीज से बच सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? Our next topic is living beings. So living beings, what are living beings? Living beings means living beings होती हैं that can eat, that can run, that can grow, that can move. These are living beings. Just like we humans are living beings, animals are living beings, plants are living beings, birds are living beings, right? So our surrounding is made of living and non-living थिंग्स। आपकी जो सराउंडिंग है, आपका एनवायरमेंट है, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से मिलके बना है, राइट? सो लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस टॉपिक, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ लिविंग बीइंग। तो मीन्स हम जो लिविंग बीइंग्स हैं, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, राइट? जैसे कि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट है, हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों पे डिपेंडेंट है, और हम भी प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो एनिमल्स और ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है। सेम लाइक ह्यूमंस आल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, हम भी सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वी कॉल्ड इट इंटरडिपेंडेंसी। हमें कुछ ना कुछ we get some most of the things from plants and animals, just like we need food from plants, okay, we need wools, we need food from animals too. So lots of things we get from plants and animals. Just like we depend on plants and animals, they also depend on us, right? Just like how plants dependent on animals and humans, we help them in pollination and spread सीड्स को स्प्रेड करने में, पॉलिनेशन जो उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं, ओके, एंड वी ग्रो प्लांट्स, ओके, सो वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, वी हेल्प देम, ओके, हम भी उनकी हेल्प करते हैं। अब एनिमल्स की भी प्लांट्स, दे गेट फूड, एनिमल्स आल्सो गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स को प्लांट्स से फूड भी मिलता है, दे गेट शेल्टर फ्रॉम द प्लांट्स, उनसे उनको तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी। तो कुछ ना कुछ चीजों के लिए हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ओके। सो नाउ टेक अ लुक ऑन दिस टॉपिक, प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू एयर, ओके, प्लांट्स का रिलीज करते हैं वाटर वेपर, किसमें? एयर में, राइट? तो वाटर वेपर टर्न्स टू द क्लाउड्स। अभी जो भी वाटर वेपर होती है, ये क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं, ओके, दैट कॉज रेनफॉल। इसलिए कहते हैं ना, वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करने हैं, ओके। प्लांट्स जो है वो अपना एक्सट्रेट वाटर, जो ज्यादा वाटर होता है, वो वाटर वेपर के रूप में एयर में रिमूव कर देते हैं, ओके। अब वाटर वेपर जो है, जब वो एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है, तो इसमें क्लाउड्स बन जाते हैं। अब वहां पे कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है क्लाउड्स के अंदर, सो फिर से वो जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। अब क्लाउड्स जब हैवी हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, तो ये ब्रस्ट होकर के रेन के रूप में नीचे आ जाएंगे, ओके। तो ये एक तरीके से क्या है? वाटर साइकिल है। तो इससे आपको वाटर आपके अर्थ पर मिलता है, और वाटर साइकिल हमेशा चलती रहती है, ओके। सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज रेन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल।
अब हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर पे सब लोग डिपेंडेंट है, जितनी भी लिविंग बींग्स है ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। सो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, वी ऑल नीड वाटर फॉर आवर सर्वाइवल। हमें रहने के लिए, लाइफ में जीने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ओके, all the living and non-living objects of our surrounding form our environment. Who form our the environment? Environment को कौन बना रहा है? और environment made up of living and non-living object. जितने भी living है और non-living object है सब मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा environment बना रहे हैं, right? Just like humans, animals, birds, trees, sun, water, mountain, okay, well, tube well, सब ये सब क्या है आपके आपके सराउंडिंग में, कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग है। ओके, all these living and non living beings depend on each other in various ways। तो जितनी भी living और non living things है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऑल आर डिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर वेरियस वे। ओके, दिस डिपेंडेंसी ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन ईच अदर, तो ये जो डिपेंडेंसी है लिविंग बीइंग्स एक दूसरे पे, इट्स कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। व्हाट वी कॉल्ड इट, interdependence, right? So dependency of living and non-living beings to each other in in to do for the various things, this is called interdependency, right? Now, how plants and animals interdependent to us, how plants and animals and humans interdependence to each other. Okay, so plant gives us oxygen and food. Plants हमें क्या दे रहे हैं, plant gives us oxygen and food, right? We need oxygen to breathe, and what plants need, plants need carbon dioxide. So who gives them to it, कौन दे रहा है उनको, we humans and animals। हम भी तो ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स। ओके, और हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन जो करते हैं, ओके, जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय प्लांट्स एंड वी नीड ऑक्सीजन फॉर टू और ब्रीथ। ओके, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इससे क्या हो रहा है, नेचर में बैलेंस रह रहा है। ओके, so plant gives us oxygen and food and they provide shelter for many animals। ओके, और एनिमल्स को प्लांट्स क्या दे रहे हैं, शेल्टर्स दे रहे हैं। एनिमल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। अब भाई प्लांट्स की भी तो हेल्प हो रही है, एनिमल्स हेल्पिंग द प्लांट इन पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है, द प्रोसेस बाय रिप्रोडक्शन करना होता है, ठीक है, उससे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स है उनको फ्लावरिंग प्लांट्स में एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं ताकि वो आके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, एंड सीड डिस्पर्सल, और सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में एनिमल्स प्लांट्स की हेल्प करते हैं। जब सीड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे तभी तो ग्रो होंगे। ओके, दिस सपोर्ट रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट। ये क्या है, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में और प्लांट के सर्वाइवल में हेल्प हो रहा है। कौन कर रहे हैं हेल्प, एनिमल्स कर रहे हैं। ओके, सो वी वाटर रेगुलरली, हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देते हैं। दिस हेल्प इन देयर ग्रोथ, और ये किस में हेल्प करते हैं, उनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वी आल्सो हेल्प प्लांट्स इन देयर सीड डिस्पर्सल, इन देयर पॉलिनेशन, हम भी उनकी हेल्प करते हैं, राइट? Now next is water is important for plants। प्लांट्स के लिए भी तो वाटर इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट, फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं। ओके, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें से प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग बींग्स हैं दैट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स रिक्वायर द सनलाइट, एयर एंड वाटर। सो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए टू मेक फूड।
प्लांट्स आर द मेन सोर्स फॉर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के लिए एकमात्र सोर्स है प्लांट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि हर्बीवोरस ओनली ईट plants, right? So herbivores are the animals that eat only plants. Okay. Carnivores eat herbivores. अब carnivores को कौन eat करता है? Sorry, herbivores को कौन eat करता है? Carnivores. And carnivores are eaten by omnivores. Okay. And that remains of plants and animals mixed into soil. अब जो भी remains होते हैं dead animals के, वो किसमें mix हो जाते हैं? Soil. देखो क्या होता है, ये फोटो एक चेन होती है, इसे हम फूड चेन बोलते हैं. व्हाट वी कॉल्ड इट? फूड चेन. ओके. फूड चेन. व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ फीडिंग रिलेशनशिप. व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग. जितनी भी लिविंग बींग्स है उनकी फूड फीडिंग रिलेशनशिप है. इसमें एक दूसरे को ये जब ईट करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है. ओके. तो जो फूड चेन है, इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद प्लांट. ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है. ओके. फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लांट. ओके. अब प्लांट ईटन बाय ग्रासहॉपर. ओके. या काउ या डियर, ये लोग क्या ईट करेंगे? प्लांट्स करेंगे, बिकॉज दे आर हर्बीवोरस. ओके. अब हर्बीवोरस को कौन ईट करेगा? कार्निवोरस. कार्निवोरस ईटन बाय ओमनिवोरस. ओके. उनको ईट करेंगे ओमनिवोरस. ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स भी ईट करते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी ईट करते हैं. तो हर एनिमल दूसरे एनिमल को भी खाता है, राइट? लेकिन अगर कोई ऐसा एनिमल था या ये एनिमल था, मान लो इनको किसी एनिमल ने ईट नहीं किया और ये डाई हो गए, तो ये फिर से सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स हो गए हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, इनकी जो रिमेन्स है, इनको ये हमारी सॉइल के अंदर डीकम्पोज हो जाएंगे. हमारे सॉइल के अंदर भी आपने देखा होगा, सॉइल के अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं. वो उनको इन रिमेन्स को क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं. ठीक है. इन सबको डेड एनिमल्स को भी खाने वाले अदर एनिमल्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि क्रो हो गए हैं, राइट? अब ये डाई हो गए तो फिर ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे. इसके अंदर जितने भी डीकम्पोजर्स हैं वो इन रिमेन्स को ईट कर लेंगे, इनके अंदर मिक्स हो जाएंगे. अभी जितनी भी डेड एनिमल्स जब ये डीकम्पोज हो जाएंगे तो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, और सॉइल में मिक्स हो जाएंगे तो सॉइल से फिर इनका जो न्यूट्रिएंट है वो किसको मिलेगा? प्लांट्स को मिलेगा. ओके. अब यहाँ से एनर्जी डेड प्लांट से एनिमल, इनकी एनर्जी कहाँ चलेगी? प्लांट्स में. प्लांट्स को फिर किसने ईट किया? इनको ईट किया हर्बीवोरस ने. हर्बीवोरस को फिर कार्निवोरस ने. तो ये एक चेन जो है वो कंटिन्यूअसली चलती है. तो इट वी कॉल्ड इट फूड चेन. समझ आ रहा है? ओके. तो जैसे कि ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को किसने ईट किया? ग्रास हॉपर इज ईटन बाय स्पैरो. स्पैरो को किसने ईट किया? स्नेक ने. ओके. स्नेक इज ईटन बाय मंगोज. ओके. अब मंगोज को किसने किया? वुल्फ और फॉक्स ने ईट किया. ओके. अब यहाँ से भी देखो फूड चेन चल रही है. इसने अपना खाना खुद बनाया. क्या क्या चाहिए इसको? एयर, वाटर, सनलाइट चाहिए. ओके. न्यूट्रिएंट्स इसको कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है. सॉइल में क्या आते हैं? जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स, उनके रिमेन्स की जो लास्ट में जो न्यूट्रिएंट बन गया, बिल्कुल एक उनके लिए अच्छी सी मैन्योर बन गया, खाद बन गई है, वहां से उनको जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को मिल गया है. ठीक है. यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर हो गया. इट्स ईटन बाय कैटरपिलर. कैटरपिलर ने इनके लिए ईट किया. अब यहाँ पे एनर्जी चली गई है फूड से, और इसकी एनर्जी कहाँ चली गई है? इसको इसने ईट किया. कैटरपिलर को किसने ईट किया? रैट ने. ओके. माउस ने. इसने ईट किया. यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ हो गया. ओके. तो फूड आप एनर्जी तो देता है, यहाँ से ट्रांसफर यहाँ होगा. इसको किसने ईट कर लिया? फॉक्स ने ईट कर लिया. ठीक है. तो दिस, ये जो आपकी साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है. समझ आ गया? सो प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस. हर्बीवोरस ईटन बाय कार्निवोरस. ओके. एंड कार्निवोरस eaten by omnivorous or decomposers. Okay. After decomposer, they mix in the soil and make manure for plants. Plants के लिए एक manure बन जाता है, और फिर ये एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूअसली चलता रहता है. ओके. नाउ you also find about what grassland ecosystem is. आपको ग्रासलैंड का इकोसिस्टम फाइंड आउट करना है.
ग्रासलैंड वो प्लेस होता है जहां पर ओनली ग्रास होती है, ओके। वहां पर फॉरेस्ट नहीं होता है, ओनली ग्रासेस होती है और कुछ स्मॉल स्मॉल से प्लांट्स होते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं ग्रासलैंड, ओके। अब यहाँ पर जो रेनफॉल है वो इतना भी नहीं होता कि जो फॉरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, उतना भी रेनफॉल नहीं होता है, ओके। ऐसा रेनफॉल होता है जो फॉरेस्ट के लिए तो कम होता है, बट डेजर्ट के लिए वो रेन। What is the critical thinking? How do plants, animals and human exist together in their share environment? कैसे plants and human exist करते हैं, कैसे रहते हैं वो share करके environment? You have to find both questions. Okay. Now, water management and preservation. This is your next topic. Next topic. This is your next topic, water management and preservation. कैसे preserve, कैसे आपको उसको save करना है. How we save water, how we manage water, हमें water को कैसे manage करके चलना है, कैसे उसको save करना है. Okay, okay. So water management means using water wisely. What is the meaning of water management? Water management means आपको वाटर को अच्छी बुद्धिमानी से वाइजली यूज करना है एंड डू नॉट वेस्ट वाटर. आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना है, ओके. सो हियर इज अ लेटर्स टू यू हैव टू सी दिस पिक्चर. आपको ये करना है कि आप यू हैव टू टिक द पिक्चर दैट शो वाटर बॉडी कंजर्वेशन, जहां पर वाटर बॉडी को हम सेव कर रहे हैं, ओके. अनक्रॉस दैट इज पॉल्यूटेड, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है उसको आपको क्रॉस करना है. जहां आपको दिख रहा है कि वाटर सेव हो रहा है, वाटर बॉडी सेव हो रही है, वहां आपको टिक करना है, ओके. सो फर्स्ट इज लिटरिंग को टिक करना है, ओके. सो फर्स्ट इज लिटरिंग वाटर बॉडी. वाटर बॉडीज के आसपास में जो कचरा है ये कैसी हैबिट है, वाटर कंजर्व हो रहा है, वाटर सेव हो रहा है, वाटर बॉडी सेव हो रही है, नो, यू हैव टू क्रॉस इट. प्लांटिंग ट्रीज ऑन रिवर बैंक्स, रिवर के बैंक पर आप प्लांट्स ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, तो यस इट इज वाटर कंजर्विंग एक्टिविटी, राइट. नेक्स्ट इज कलेक्टिंग वाटर नियर अ लेक. यस, लेक्स के नियर बाय से आप जब कलेक्ट कर रहे हो वेस्ट, तो ये दिस इज द वाटर बॉडी कंजर्वेशन में. इससे आप वाटर कैसे सेव कर रहे हो, वाटर बॉडीज को सेव कर रहे हो, वाटर बॉडीज को सेव कर रहे हो, उनको क्लीन कर रहे हो. नाउ water preservation is important to protect और water conservation इसलिए जरूरी है to because we have to protect our environment. हमें अपने environment को protect करना है. So we have to preservation of water. It makes sure that we have enough water for our need. हमें इस बात की श्योरिटी रखनी है कि हमारे पास जितना वाटर है वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग हो, जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही वाटर यूज करें. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट. यहाँ पर कुछ आपके पास एग्जांपल्स है कि हाउ यू सेव वाटर, आप वाटर को कैसे सेव कर सकते हो. फर्स्ट इज टेकिंग शॉर्टर शावर. आपको शॉर्ट शावर लेना है, मीन्स यू कैन ऑल्सो यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर. आप क्या कर सकते हो, बकेट और मग का यूज कर सकते हो बाथिंग में शावर की जगह. सो व्हेन वी टेक लॉन्ग शावर, जब आप लॉन्ग शावर लेते हो वी यूज लॉट ऑफ वाटर. भाई लॉन्ग शावर लोगे तो वाटर का ज्यादा यूज होगा. बाय शॉर्टनिंग और शावर टाइम वी सेव वाटर. अगर आप कम शावर लोगे मीन्स बाथिंग को आप ऐसे भी सेव कर सकते हो, बकेट और मग का भी यूज कर सकते हो, और यू हैव टू टेक short shower, okay. By doing this process we have to conserve our water, we have to save our water. Next is turning off the tap while brushing teeth. जब आप अपने ब्रश कर रहे हैं, टीथ ब्रश कर रहे हैं, यू हैव टू टर्न ऑफ टैप. आपको टैप को क्लोज कर देना है, उसको ऑफ कर देना है. जब तक आप ब्रश कर रहे हैं तब तक ऑफ रखिए. लीविंग द टैप रनिंग, अगर आप ब्रश भी कर रहे हैं और आपका टैप रनिंग है, चलता जा रहा है, उसमें से वाटर वेस्ट हो रहा है, सो
while running brushing, while running tap, while when you brushing our teeth, a lot of water goes waste. Okay, बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है. We should turn it on when need to rinse. आपको कब इसको ऑन करना है? जब आपको अपने माउथ तभी आप उसको ऑन करिए. What is this? वाटर. अब हमने क्या क्या समझा है? वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर बॉर्न डिजीज और इंटरडिपेंडेंसी ऑफ लिविंग बींग्स. अब इंटरडिपेंडेंसी में रोल ऑफ वाटर इन फूड चेन. ओके, फूड चेन में वाटर का क्या रोल है? बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स and water management and preservation. These topics we learn in this chapter. Okay, so your chapter is completed. What we do in our next class, we have to do hard words, question answers, and book exercises in our next class. Okay, so your today's task is you have to read the chapters and give do this. Let us do of page number 98. Okay, and the question on page number 97, you have to research this one, what ecosystem of grassland, you have to find about it, and also how do plants, animals, human exist together in their shared environment. These are the three tasks that you have to do at your home. Okay, so our class is over for today. We will meet in our next class. Goodbye.